Good evening, everybody. See, I'll just let you know about myself. I'm Kritika Jain, and I am an engineer. We'll be starting with applied mathematics of class 12th. See, preferably we'll be going with ML Agarwal because it is having all of your topics and they are very systematic right now. But yes, you can do practice from any other book, R.D. Sharma. Many of the students, they go with R.D. Sharma, right? So, maths आप कह रहे हो, maths difficulty, ऐसा? अभी कैसा करना है उसको इजी करना है या डिफिकल्ट ही पढ़ना है उसको सी इजी करना है ना तो माइंड में भी इजी करना होता है बिकॉज मैथ्स एंड डिफिकल्ट इज अ सिनोनिम है ना पर्यायवाची तो है एक दूसरे के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए बट ऐसा नहीं है वी हैव टू मेक इट सिंपल एंड हाउ कैन वी मेक इट सिंपल बाय रेगुलर प्रैक्टिसिंग ठीक है कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग योर क्वेश्चंस बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंसेप्ट आते हैं बट प्रॉब्लम क्या होती है जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कोई सिली मिस्टेक करके आ गए 2+5 भी गलत कर देते हैं हम राइट ऐसा होता है कई बार राइट सो दैट वी हैव टू अवॉइड वो कैसे हो सकता है रेगुलर प्रैक्टिसिंग से okay so in 11th you have studied many topics in applied mathematics in 12th also you have some topics जो कि कुछ यूनिट्स में डिवाइडेड है 11th में भी यूनिट्स में डिवाइडेड थे टॉपिक्स याद है भूल गए वाइप ऑफ तो नहीं हो गया पक्का है ना क्योंकि थोड़ा थोड़ा 11th वाला भी पोर्शन यूज करेंगे देर आर सम यूनिट्स जो आपके 11th वाले जो आपने पढ़ा है दे विल बी लाइक बेसिस एंड 12th में हम उसको थोड़ा सा एडवांस्ड वे में पढ़ेंगे राइट सो योर 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 8 यूनिट्स हियर यू हैव 8 यूनिट्स राइट सो द फर्स्ट वन इज numbers, quantification, and numerical applications. Okay, the second one is algebra. Now this will be treating with everything related to your numbers, right? Then अलग-अलग practical based जो हमारी problems होती हैं pipes, cisterns आपने नाम सुना हो कभी है ना pipes, yes, pipe and tanks, yes, pipes and tanks related problems. Then आपके day to day application upstream downstream class 10th में पढ़ी थी ये problems ध्यान है linear equations in two variables वैसा वैसा कुछ concepts we'll be studying about. This is a very interesting unit. Then you have algebra. Here you will be introduced with a new way of presentation of numbers, right, in the form of matrices and determinants, right? The third is calculus. ये तो बड़ी गंदी लगी होगी कैलकुलस कैसी लगी थी क्या पढ़ा था ध्यान है differentiation. So here we'll be extending our differentiation part and we'll be also introducing integral calculus. Very good. Integration, he knows something. So fourth one is probability distribution. Right? The next unit is your probability distribution जहाँ पे हम अलग-अलग distributions पढ़ेंगे standard distributions जो हम लोग हमारे day to day life problems में भी apply करते हैं right then you will be having fifth unit as very good inferential statistics sixth याद है कुछ See here again, थोड़ा सा statistics का ही section है. That will be index numbers and time series, right? So index numbers and time series. Last year में index numbers पूरा remove हो गया था, and only time series was there. And this time, let's hope so. The same syllabus continues. तो आपका ये आधा unit हट जाएगा, सिर्फ आधा रह जाएगा. Okay. Then next, any idea? Accounts वाले हो? थोड़ा सा finance भी पढ़ेंगे यहाँ पे. Very good. Financial mathematics. So this will, I think, help your thoda sa accounts maybe, right? So stocks, debentures, bonds, perpetuity, utility, annuity, very good. So all these topics we'll be going through in this unit. And the last one, very simple, very scoring. I consider it very scoring. This is the last, which is नहीं वो उसमें थी लीनियर प्रोग्रामिंग
दिस इज कंसिडर्ड टू बी एन ईजीएस्ट यूनिट, और है ना पता है बहुत ही स्कोरिंग होती है, सो वेरी स्कोरिंग, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें, सो ईजी भी है और स्कोरिंग भी है, राइट। अगेन अगर ईजी होती है तो आपको पता है वेटेज थोड़ी कम ही देते हैं, इतने अच्छे भी नहीं है ना हमारे सीबीएसई वाले, सो इट हैज़ लेस वेटेज बट येस इट इज स्कोरिंग, राइट। सो हाँ ऐसा ही कुछ इसका 6 मार्क्स का वेटेज है, सो हियर इट विल बी हैविंग अ लेस नंबर ऑफ वेटेज बट येस it is scoring, right? So you know you will be having an 80 marks paper, theory paper, 20 marks will be your assignment, internal assignments जो आप स्कूल में एग्जाम्स देते हो. The other thing, don't mess with your teacher now. 20 marks उनके हाथ में है, लड़ाई वड़ाई बिल्कुल मत करना भाई टीचर से, है ना, बहस भी नहीं करनी है, right? So today we'll be starting with the second unit. Now this unit again is a very important unit, the algebra unit, and it carries 10 marks of your entire 80 marks, so 1/8 marks of your entire paper, and we'll be starting with this algebra part. The reason why I started with this, because this is a very new thing, जो आप class 12th में ही पढ़ेंगे, 11th, 10th, 9th, ये आपने कभी नहीं पढ़ा है, right, in any of the classes. But yes, this you might be knowing. कैसे आप लोगों ने Excel यूज किया है, सबने यूज किया होगा, Microsoft Excel, क्या होता है उसमें कुछ पता है? हाँ टेबल्स होती हैं, टेबल्स के अंदर क्या होता है वैसे? न्यूमेरिकल डेटा होता है, और कुछ आइडिया किससे बनती है टेबल्स? वेरी गुड, आई वांटेड टू हियर दैट, रोज एंड कॉलम्स. सो बेसिकली मेट्रिसेस, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर मेट्रिसेस. Okay, now matrices क्या है? Matrices or matrix. Matrices is a plural name. Matrix is a singular name for this. Matrix क्या है? अभी तक आप लोग ने sets पढ़ा था, है ना? क्या था? ऐसे arrangement of something in the form of this, right? Curly braces में enclose कर दिया था. You can put anything, objects, numbers, alphabets, anything. Objects के अंदर सब कुछ आ जाता है, right? Right? So this is an arrangement. Similarly, matrix is also an arrangement. The arrangement of objects in the form of rows and columns. ठीक है? So this is what? An arrangement of objects in the form of rows and columns. Now since we are dealing with math, so basically यहाँ पे क्या होगा? Arrangement of numbers. Numbers हो सकते हैं, functions हो सकते हैं, जो भी math से related हमारे terms होती हैं वो सब हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? Variables हो सकते हैं, है ना? So it can be anything here. Complex numbers भी हो सकते हैं. Complex numbers समझते हैं? Imaginary numbers, real numbers हो सकते हैं, complex numbers हो सकते हैं, ठीक है? Then आपके mathematical functions हो सकते हैं. आपने standard functions पढ़े थे, याद है? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़े थे क्लास 10th में, ध्यान है कुछ? साइन थीटा कॉस थीटा, वो फंक्शंस भी हो सकते हैं. देन पैराबोलिक फंक्शंस पढ़े थे आप लोगों ने, राइट? सो दोज फंक्शंस कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस matrix, right? So matrix, it is an arrangement of object in the form of rows and column. Now, what is row and what is column? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है? वेरी गुड. दी हॉरिजॉन्टल्स, हॉरिजॉन्टल तो समझते हैं ना सब? हॉरिजॉन्टल्स आर दी रोज, whereas the verticals are the columns. Right? ठीक है? Now अब अगर हम बात करें तो जैसे सेट के अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस यूज किए थे रिप्रेजेंटेशन के लिए, वैसे ही मैट्रिक्स इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ठीक है? या तो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर राउंड ब्रैकेट्स जो नॉर्मल हमारे पैरेंथेसिस होते हैं. बट द फर्स्ट वन इज यूज्ड मेजरली. We'll be using the first one. We will always enclose our matrix in a square bracket. ठीक है? So इसका मतलब इस square bracket के अंदर कुछ rows होंगे और कुछ columns होंगे, क्योंकि इसने तो यही बोला ना, arrangement of objects in the form of rows and columns. So this means this matrix might be having some rows and some columns, right? Something like this.
करेक्ट, कुछ एंट्रीज. सो नाउ मैट्रिक्स क्या है, देखिए मैट्रिक्स मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं अब हम, ठीक है. नाउ मैंने बोला रोज और कॉलम्स होंगी, तो गिनती की रोज होंगी और गिनती की कॉलम्स होंगे, राइट. अच्छा एक बात बताएंगे, रोज कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट, बट हम यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ रोज लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स डिफाइन करना है हमको. अदरवाइज इनफाइनाइट करोगे तो क्या होगा, इट विल नॉट बी डिफाइंड, नीचे फिर आप डॉट 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 ही लगाते रहोगे, राइट. सो हियर वी हैव डिफाइंड रोज एंड डिफाइंड कॉलम्स, ठीक है. सो लेट अस से माय मैट्रिक्स इज हैविंग m रोज. m रोज मतलब हॉरिजॉन्टल m लाइंस है. कैन आई से दिस, yes or no? So my matrix is having 1 2 3 4 and so on up till let's say m रोज है मेरे पास. करेक्ट लिखा है मैंने. अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 24 36, ठीक है, 41 and 50. So can I say 24 मेरे फर्स्ट रो में है? Can I say थर्ड रो में मेरा 41 है? Can I say 50 मेरा mth रो में है? करेक्ट बोला मैंने, ठीक है. अच्छा अब मैंने बोला इसमें कॉलम्स भी होते हैं. सो लेट अस से इसमें n कॉलम्स है. n कॉलम्स मतलब वर्टिकल, ठीक है, ठीक है. सो n कॉलम्स है, तो ये तो फर्स्ट कॉलम ही लिख दिया मैंने. ऐसे ही कोई सेकेंड कॉलम भी होगा, थर्ड कॉलम भी होगा एंड सो ऑन. लेट्स से n कॉलम्स हैं, राइट. ऐसा कुछ हो सकता है. बस इसमें क्या फर्क है, हम लोग जो एक्सेल था ना, आपको ध्यान है एक्सेल में हमारे ऐसे होता है, ध्यान है, ऐसे अलग अलग होते हैं और फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे होता है, करेक्ट. याद आया, एक्सेल ऐसा ही कुछ होता है ना आपका. एक्सेल टेबल ऐसी तो होती है, द टेबल इज लाइक दिस ओनली. बस फर्क इतना सा है मैट्रिक्स में, ये जो लाइंस है ना, दीज आर इमेजिनरी, दे आर नॉट देयर, दे आर इमेजिनरी. सो आपको ऐसे उनको जमाना है कि आप उसको समझें कि इन विच रो एंड विच कॉलम योर एलिमेंट और एंट्री और योर नंबर इज, ठीक है. सो लेट अस से मैंने यहाँ पे सपोज ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, इसमें मैंने लिखा 61, राइट. तो जितने भी नंबर्स में किसी मैट्रिक्स का पार्ट बनाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एंट्रीज और द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या कहलाएंगे? दिस इज अ एलिमेंट और एन एंट्री. क्योंकि मैट्रिक्स का पार्ट है इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और एंट्रीज, ठीक है. हर एंट्री और हर एलिमेंट यूनिकली एड्रेस्ड है. आप देख सकते हैं हर का यूनिक एड्रेस है. कैसे? देखिए सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है सपोज, और यहाँ पे मैंने लिखा है 30. सो अगर मैं बोलूं 30 का क्या एड्रेस है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, या मैं आपसे पूछती हूँ, लेट अस से आई एम आस्किंग यू फोर्थ रो एंड nth कॉलम, लेट्स से 71 मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है. ऑन फोर्थ रो और what is the element at fourth row and nth column? 71. आपका आंसर हमेशा यूनिक है ना. क्या आप कंफ्यूज थे क्या कि मैम 71 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है? नो. सो कैन आई से कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक और यूनिक एड्रेस है, एंड और वी कैन से एवरी एलिमेंट और एंट्री इज यूनिक इन इटसेल्फ, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एड्रेस से स्पेसिफाइड है, राइट. सो यहाँ पे ये कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं कि एक एंट्री 2 बार है या एक एड्रेस पे 2 एंट्री है, कि मैंने बोला सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे मैम 30 भी और 31 भी है, वो वाला हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हर एक एड्रेस पे आपको एक ही एलिमेंट लिखना है, राइट. सो हियर कैन आई से इट इज एन अरेंजमेंट. नाउ मैं एक जनरल आपका मैट्रिक्स बना के बताती हूँ आपको कि एक जनरल मैट्रिक्स कैसा दिखता है. अरे भाई कितने बिजी हो आप, फोन आ रहा है. चलिए, सो अभी हम mth रो और nth कॉलम, यही m रोज और n कॉलम्स का ही बनाते हैं. या चलिए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, सिंपल. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन. 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. नाउ 2 रोज मतलब 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री, बस. करेक्ट? यस और नो? ओके. अभी हम इनके एड्रेस नहीं लिखे हैं, ठीक है. अब अपन एक 2 रो का और 3 कॉलम का बनाते हैं.
2 रो और 3 कॉलम, मतलब पहली रो में कितनी एंट्री आनी चाहिए? पहली रो में कितनी एंट्रीज होंगी? 3, 1, 2, 3 कॉलम्स है ना? कैन आई से दिस? देखो ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स, सिमिलरली रोज और कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रो में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतनी ही एंट्रीज हैं। देखिए कॉलम 3 बन गए और 2 रो बन गई, करेक्ट। एक और बनाए 3/4। 3/4 का मतलब नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। सो जब मैंने m और n वाला बनाया था तो उसको क्या बोलूंगी मैं? m/n मैट्रिक्स, राइट? ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई। ये क्या था? 2/2। ये क्या था? 2/3, right? So this is a 3/4 matrix. Now can you tell me how many rows here it will be? 3. And हर रो में कितनी एंट्रीज होनी चाहिए? 4. Very good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Correct? And square bracket बंद. Correct? Yes? Okay. Now let us understand अंदर के elements कैसे लिखते हैं. So किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, राइट? सो यहाँ पे लेट्स से आई डिनोट दिस एज माय कैपिटल ए, है ना? दिस बाय कैपिटल बी, एनी कैपिटल लेटर यू कैन यूज बट इट हैज टू बी कैपिटल, ओके? दिस लेट इट बी सी, ओके? नाउ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर्स हमको समझ आ गए, 2/2, 2/3 एंड 3/4। ऑर्डर मतलब number of rows and number of columns, that is the order of a matrix, ठीक है? अच्छा, क्या आप इंटरचेंज कर सकते हो क्या? क्या 3/4 और 4/3 सेम होगा? 3/4 और 4/3 सेम होगा? 3/4 और लेट्स से D बना रही हूँ एक 4/3, will they be same? Obviously no. क्यों भाई? इसमें 3 रो है, इसमें 4 रोज हो गई, है ना? इसमें 4 कॉलम्स में आपने बनाया था, इसमें 3 कॉलम्स में बनाओगे, सो डेफिनेटली दे विल बी नॉट। सो क्या मैं कह सकती हूँ हर मैट्रिक्स का आप यूनिक तरीके से स्पेसिफाई भी कर सकते हो ऑर्डर, क्योंकि अगर आप इंटरचेंज कर दी तो मैट्रिक्स ही चेंज हो गया। जैसे इधर चेंज हो गया था 4/3 हो गया, तो मैट्रिक्स का नाम ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रहा है सी के जैसा यार, उसका तो क्या बोलते बॉडी फिगर ही चेंज हो गया। ये इतना मोटा है, ये थोड़ा बड़ा लंबा पतला हो गया थोड़ा, 1 2 3 1 2 3, बहुत डाइटिंग पे चला गया था आई थिंक। सो ये ऐसे 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 श्रिंक हो गया, है ना? दिस इज बिफोर गोइंग टू जिम, दिस इज आफ्टर जिम। वो बिफोर आफ्टर देखते ना तुम लोग फोटोज, है ना? देखते होंगे बहुत सारे जिम वाले प्रमोट करते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ये बिफोर एंड आफ्टर वाले कंसेप्ट हो गया। सो आर दे सेम? No, obviously not. So we say order is very important for a matrix, ठीक है? क्योंकि वो order उसका क्या बताता है? Basic structure, ठीक है? So हमने देखा मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। अब इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। Corresponding elements of a matrix are denoted by small letter, corresponding small letter. So for A, small a, B के लिए small b, C के लिए small c, X के लिए small x, ठीक है? सो ऑल द एलिमेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, राइट? अब देखते हैं हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए का एलिमेंट क्या होगा? ए, स्मॉल ए, ठीक है? अब ये कहाँ पे है? देखिए इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हमेशा रो पहले लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, और जनरल क्या होता है? देखिए एंट्री और उसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं रो कॉलम, ठीक है? एंट्री, मेरी एंट्री यहाँ पे क्या होगी? स्मॉल ए, क्योंकि ए का जनरल लिख रहे हैं अभी तो हम, तो स्मॉल ए, और इसका एड्रेस क्या होगा? 1 1, नो कॉमा इज पुट हियर, ठीक है? वो ऑर्डर्ड पेयर्स में जनरली होता है, यहाँ पे नहीं लगाते हम। सो हियर इट विल बी, अच्छा इसकी बताएंगे क्या? रो नंबर बताना पहले, फिर कॉलम नंबर बताना। 1 1 2, कॉमा नहीं लगाते हैं हम यहाँ पे। सी आई हैव नॉट पुट ना, स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। सो A11 A12, कैन यू टेल मी दिस वन?
very good. Second row and first column, correct? A22, very good. अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भाई A21 is 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला एंट्री क्या है? करेक्ट, सही है. अच्छा, आपको कंफ्यूजन हुआ था क्या 21 लिखने के बाद भी आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ है 21 भाई? नहीं ना. इसका मतलब यू हैव यूनिक एड्रेस फॉर एवरी एलिमेंट, करेक्ट. नेक्स्ट आप बता सकते हैं मुझे इसके एलिमेंट्स के क्या नेम्स होने चाहिए? B11, 12, 13, वेरी गुड. 2/3 है ना, सो जितने कॉलम्स है उतने तक आप उसको ले जाओ, करेक्ट. देन 21, 22 एंड B23, वेरी नाइस, करेक्ट, सही है, पक्का. इज दिस क्लियर टू ऑल? कैन आई जनरलाइज द कंसेप्ट नाउ? जनरलाइज करें इसको. ओके, सो लेट्स जनरलाइज अ मैट्रिक्स नाउ. फिर हम मैट्रिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन यहां पे देखते हैं. So let there be a matrix A, any matrix A of order. Order means dimensions कह सकते हैं ना. Length into breadth लिखते थे ना तुम लोग, L into B हमेशा. यहाँ पे क्या होता है? Rows into columns. Same ही हुआ, L into B. Correct? सही है? Okay. So let A be any matrix of order m by n. Correct? Now हम लोग पता है कैसे लिखते हैं वैसे? A m by n. ऑर्डर ऐसे नीचे स्पेसिफाई कर दिया. इसका मतलब इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है. नाउ A इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, चलो. A11, A12 अप टिल A1n, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n, तो n कॉलम्स बनेंगे. यस और नो? करेक्ट ना. अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए नेक्स्ट मुझे एंट्री? A21. A12 तो ये हो गया, करेक्ट. A22 एंड सो ऑन अप टिल A2n, वेरी नाइस. नेक्स्ट ऐसे ही 31, 32, 33 एंड सो ऑन, राइट. सिमिलरली लास्ट रो क्या होगी? M1, वेरी गुड, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज इज m. सो M1, M2 एंड सो ऑन अप टिल AMN. अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे किसी भी मैट्रिक्स जो कि ऑर्डर m by n का है उसमें कितने एलिमेंट्स हुए या कितनी एंट्रीज हुई? वेरी गुड, m into n. So can I say the number of entries or the number of elements in a particular matrix is number of rows into number of columns? Yes or no? अच्छा, क्या ये आपको एक कौन सा कैसा दिख रहा है ये शक्ल से, मतलब क्या शेप है ये? Very good, rectangular, correct? Correct now? So now, what is matrix? Let's see. Matrix is a rectangular arrangement of mn elements in the form of m rows. सही लिखा मैंने अभी तक? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. कितने एलिमेंट्स थे टोटल? mn एलिमेंट्स, उनको तुमने इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल जमाया सच दैट इट इज हैविंग m रोज एंड और सच दैट ईच रो is having n elements. Correct or not? Yes or no? See, there are in the form of m rows and every row is having n elements. n columns है तो हर row के अंदर क्या है? n elements. This is the actual mathematical definition of matrix. This is the general form of a matrix. Right? Now आप पूछोगे यार मैम मैट्रिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? मतलब इतना सारा पढ़ लिया हमने फिर भी मैट्रिक्स पढ़ा रहे हो. See, matrix is having its application in variety of fields.
It's not only in maths, but it is in psychology, it is in statistics, it is also useful in commerce and industry, physics, chemistry, everywhere matrix is having its application. आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आप लोगों को ये हेल्प करेगा मेजरली टू सॉल्व लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस. छोटी क्लासेस में पढ़िए ना, ध्यान है ये वाली. 2x plus 3y equal to 6, 4x plus 7y equal to 12. याद है? Solve for x and y. फिर एक z वाली भी, आजकल की तुम z जनरेशन, z जनरेशन हो गए ना, तो हम तो z बोलते थे, 5z. अब तुम लोग z बोलने लग गए हो ना, है ना? z बोलते हो ना, है ना? 2x plus 3y plus z equal to 10. ठीक है? एंड 4x प्लस 8y प्लस 2z इक्वल टू 5. एक और चाहिए होगी ना? 2 में सॉल्व हो जाएगा क्या तीनों के लिए? एक और चाहिए होती है ना? so, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 11. ऐसे रैंडमली लिखा है मैंने, कुछ भी हो सकता है आंसर. सो बेसिकली ये क्यों आए थे मेट्रिसेस? बेसिकली फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस. सो मेजरली मेट्रिसेस का एप्लीकेशन आप लोग अभी फॉर द टाइम बीइंग यू विल बी यूजिंग इट फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस इन n नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अभी तक आप सिर्फ 2 वेरिएबल ही पढ़ के आए हो ना क्लास 10th में. 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स, कितने भी वेरिएबल्स हो, यू कैन यूज मैट्रिसेस फॉर सॉल्विंग देम. बट अगेन यू रिक्वायर n वेरिएबल्स के लिए हाउ मेनी कंडीशंस? n कंडीशंस. 2 वेरिएबल्स से 2 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस. मिनिमम आपको n वेरिएबल्स के लिए n कंडीशंस तो चाहिए, तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. राइट? सो इन मैथ्स बेसिकली इसका यूसेज हम लोग टू सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए लेंगे. और दूसरा, हम लोग हमारी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डे टू डे हमारी जो हम लोग डेटा यूज़ करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है? कि एक पर्टिकुलर फार्मर है, उसके अप्रैल के महीने में राइस और वीट की इतनी इतनी उपज हुई, और मई के महीने में राइस और वीट की इतनी इतनी यील्ड हुई. तो बताओ, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको लिख दो. तो आप लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? चलो, आप एक फार्मर हो, ठीक है? बी से हम आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं. लेट अस से आप 2 चीज़ें उगा रहे हो, राइस एंड व्हीट. ठीक है? अप्रैल के महीने में और मई के महीने में. So 10 and 40, and let's say here 5 and 21. So अगर मैं आपसे पूछूं या इनसे पूछूं कि भाई अप्रैल के महीने में इसकी वीट की कितनी यील्ड हुई, आप मैट्रिक्स लिख के बता सकते हैं. So can I represent my day-to-day data also in the form of a matrix? Yes or no? So basically मैट्रिक्स को पता है क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर एरे भी बोला जाता है. एरे क्या होती है वैसे? एरे अरेंजमेंट बेसिकली इन अ लीनियर फैशन. ठीक है? हम ये क्या कर रहे हैं? एक रेक्टेंगल के फॉर्म में. ठीक है? आई बात समझ में सबको? इज दिस क्लियर? सो हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, मैट्रिक्स पढ़ा. ऑर्डर क्या होता है? रोज इनटू कॉलम, द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. एलिमेंट्स कोई भी मैट्रिक्स के अंदर जो होता है वो कहलाता है एलिमेंट या एंट्री. हाउ मेनी एलिमेंट्स और एंट्रीज आर देयर इन अ मैट्रिक्स? m into n, the number of rows into number of columns. Yes or no? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का? चलें आगे. $49 into 112. Correct. So no, by क्रॉस लगा दिया ना यहाँ पे. हाँ, there will be no comma, है ना? 49 वो स्पेस दिख जाता है फिर ऐसे. हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको फिर स्पेसिंग देखना पड़ेगा ना, अदरवाइज इट विल बी वेरी मिक्स्ड अप. राइट? सो ऐसा नहीं है. ठीक है? वो आपको अकॉर्डिंगली, वो आपका अरेंजमेंट और रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली. ठीक है? ज़्यादा नंबर होते हैं तो we put like this, थोड़ा सा स्पेस करके, and then the next column number. Right? There is no comma but here.
द कॉमा इज नॉट यूज इन बाय कन्वेंशन, ठीक है, एंड यू मस्ट ऑल्सो नॉट यूज बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ कन्वेंशन नॉट टू पुट, सो वी शुड नॉट पुट, ठीक है। रूल नहीं है, कन्वेंशन है। रूल मतलब होता है कि आपको फॉलो ही करना है, कन्वेंशन होता है कि आपकी इच्छा हो तो फॉलो करे। बट यस, क्योंकि यहाँ इच्छा, अब आप बोलो यार मेरी तो इच्छा नहीं है, मैं तो लगाऊंगा कॉमा, कर लो जो करना है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बुक्स में चला आ रहा है, सो वी हैव टू फॉलो द सेम ट्रेंड हियर, राइट। आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाना है। मैंने बताया ना अभी क्लास 12 में आउट ऑफ ट्रैक जाने से बहुत दिक्कत हो जाती है, टीचर भी फिंगर जाती है फिर, है ना, फिर वो फिंगर गई तो फिर मार्क्स लॉस्ट हैं, ठीक है। सो टीचर को नहीं गुस्सा दिलाना है, और बेसिकली द कन्वेंशन इज दिस ओनली दैट यू हैव टू पुट लाइक दिस, ओके। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ओके, सो लेट्स डू वन क्वेश्चन नाउ, वेरी इजी वन, ओके। क्योंकि अब आपको ऐसे एड्रेस लिखना आ गया है एलिमेंट का, है ना, एंड तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे आप लोग, कंस्ट्रक्ट करेंगे। Now before I start, I'll write a representation of matrix. Maths में represent कैसे करता है maths या matrix को? So A is a matrix of order m by n, ठीक है। फिर है ना मैट्रिक्स है ना, तो कैसे लिखते हैं? इसके अंदर एलिमेंट होगा A, करेक्ट। उसका ijth एड्रेस है, ठीक है, where I lies between, कितनी है I क्या होती हैं? Number of rows, first वाला तो number of rows है, how many rows do you have? So can I say my I will lie from 1 to m? देख लो ना यार, यहाँ पे 1 से लेके m तक है फर्स्ट वाली वैल्यू, और दूसरी वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके n तक। So where I lies from this to this and j lies between 1 and n, the number of columns, maximum number of columns, right or not? Can I say this? So मैं किसी भी एलिमेंट को यहाँ यूनिकली बोल सकती हूँ 3 2, 3 2 मतलब third row and second column, very good. Now construct a 2 by 3 matrix given that A is equal to Aij, ठीक है। कई बार हम लोग यहाँ m by n यहाँ नहीं लिख के यहाँ पे भी लिख सकते हैं m by n, ठीक है, यहाँ पे भी, ओके, इट्स ओके। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, इस बार यहाँ लिख देती हूँ 2 by 3 where Aij is equal to I plus j. So आपको पूरा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और मैंने आपको हर एंट्री का फॉर्मूला बता दिया है। So there is a general formula to find all the entries. Very easy one I have given, I plus j करना है आपको, उसके एड्रेस के वैल्यूज को ऐड ही करना है, ठीक है। So can you construct this now? So सबसे पहले सबसे सिंपल अभी स्टार्ट ही करे हैं, तो वेरी सिंपल वील स्टार्ट विद द जनरल फॉर्म, क्योंकि 2 by 3 है, सो जनरल फॉर्मेट क्या हो जाएगा? 2 रोज 3 कॉलम्स लिख लेते फटाफट से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, करेक्ट। अच्छा, A11 क्या हो गया? I की वैल्यू क्या हो गई? 1, और J की वैल्यू क्या हो गई? सो A11 क्या हो गया? करेक्ट, जनरल फॉर्मेट आपको दे दिया। अच्छा, A32 सॉरी 2 3 क्या होगा? यहाँ पे 3 2 तो है ही नहीं, 2 3 क्या होगा? 2, I की वैल्यू क्या हो गई? 2, और J की वैल्यू क्या हो गई? 3, सो 2 + 3 दैट विल बी 5। सो आप पूरा मैट्रिक्स लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट समझ आ गया कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मैट्रिक्स को? सो A इज इक्वल टू, लिख लीजिए, A11 1 + 1, अब तो करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। आया आपको? पक्का? अच्छा लगा? 2 3 4 ये बनेंगी एंट्रीज, रो की, फर्स्ट रो की, सेकेंड रो की। आई होप ये आया होगा। मैंने ये थोड़ा सिंपल दिया है अभी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे I/2 + j,
कैसे भी कर सकते हैं आप, ए आई प्लस जे बाई 3, कुछ भी, मतलब कुछ भी फंक्शन आ सकता है आपके सामने, राइट? चलें आगे, करें एक क्वेश्चन और, आप अपने आप बनाएंगे अब एक मैट्रिक्स। आप बहुत लकी होंगे अगर ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। बोल रही हूँ ना, लकी होंगे। आ गया तो चलिए एक और बनाइए। सेम, कंस्ट्रक्ट 4/3 matrix B equal to Bij 4/3 such that Bij is equal to I plus 2j by 2. आएगा? How many rows and how many columns? 4 rows and 3 columns. ठीक है, तो मेरे को कैसा पतला बनाना है, मोटा बनाना है? ये पतला और लंबा है ना। 4 रोज हैं तो 4 नीचे तक जाएंगी और 3 चौड़ाई में, राइट? सो A11, A12, सॉरी बी है ये, सॉरी B11, B12, B13, सही लिखा है मैंने या 14 भी आएगा? आएगा क्या यहाँ? नहीं ना, नीचे आएगा ना, B21, B31 एंड B41, करेक्ट? फिर यही B22, B23, B32, B33 and B42, B43, राइट? ऐसे ही बनाया आप लोगों का भी? कैसा बनाया है? ऐसे ही बनाया ना? अच्छा, एंट्रीज निकल गई क्या? बताएंगे? फर्स्ट एंट्री 3/2, सेकेंड 5 एग्जैक्ट है। 5 एग्जैक्ट कैसे आया? 5/2 आएगा ये तो, चेक कीजिए। 5 नहीं आ सकता ना, देखो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 4/2, ठीक है? आया 5/2। नेक्स्ट एंट्री 7/2, दिस वाज इजी। नेक्स्ट एंट्री बताएंगे 2 1, 2 प्लस 2/2, 2, वेरी गुड, 4/2 बेसिकली है ना। नेक्स्ट 3 एंड 4 होएगा ये, करेक्ट? आया आपको? आया पक्का? नेक्स्ट 3 1, 5/2, वेरी गुड। नेक्स्ट 7/2 होगा और ये 9/2, और लास्ट वाली बता दीजिए 3 4 एंड 5। आई होप सबकी यही एंट्रीज आई हैं, पक्का? अब चलो एक 1 मार्क टाइप्स का इसका क्वेश्चन बताती हूँ, थोड़ा इजी टाइप्स, करेक्ट? ओके, सो consider A equal to Aij 2/3, है ना? ओके, where Aij equal to I minus j by 2, ठीक है? नेगेटिव एंट्रीज, बिकॉज हियर यू कैन हैव रियल नंबर एंट्रीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज बोथ, है ना? तो नेगेटिव वैल्यूज भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है? देन एंड B
equal to Bij, a matrix of order 3 by 2 here I'm writing, okay, where Bij is equal to, let's say, I plus 4j by 3. ठीक है? Okay. Find A11 plus B21. मैं पूरा मैट्रिक्स नहीं बनवा रही हूं आपसे, समझ आया क्वेश्चन? आपको ए का फर्स्ट वन एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का सम विथ बी के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के सम के साथ बताना है मुझे, बस दैट्स इट. समझ आ गया? डू यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स हियर? नो, नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है? आंसर इज 2. करेक्ट? सो दिस इज 1 1 विल बी व्हाट? 1 minus 1 by 2 0, और 2 1 क्या हो जाएगा? 2 plus 4 by 3, so 2. आंसर इज 2. करेक्ट? समझ आया? अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ. A31 प्लस B31 बता, या 33 बता, 32 बता दीजिए आप. A31 एंड B32 बताइए. Are you sure you have to calculate? Check करो. चलो MCQ बना देती हूँ. 15 by 2, 7 by 2, 8 by 2 and not defined. Very good. So it is not defined now. देखिए ना, A तो है ही नहीं तीसरी रो में, तो A का तीसरी रो में फर्स्ट कॉलम में डिफाइंड ही कैसे होगा? I की वैल्यू 3 तक तो जा ही नहीं सकती है, I की वैल्यू तो 2 तक ही जा सकती है. तो ये जो 3 1 वाला एलिमेंट है ये डिफाइंड ही नहीं है. करेक्ट? कैन आई से दिस? भाई I जब आपका 3 तक जा ही नहीं सकता तो निकालोगे कैसे? I की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 to 2, क्योंकि 2 ही तो रोज है. सो I will lie between 1 and 2. सो I की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती. जब I 3 हो नहीं सकता तो आप A31 निकाल नहीं सकते. सो कैन आई से दिस एंटायर सम इज अनडिफाइंड हियर? ये तो कैलकुलेट हो जाएगा 3 2 तो, बट ये तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड. सो योर आंसर विल बी अनडिफाइंड या कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, जो भी आपके ऑप्शन में हो वैसे. ठीक है? समझ आया? अभी ये दिमाग की प्रेजेंस गायब थी इसलिए सब कैलकुलेट करने बैठ गए थे, है ना? सो दीज सिली मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड. राइट? समझ आया? ये 1 मार्क क्वेश्चन, जैसे इसमें आपको समझ आ गया 1 मार्क क्वेश्चन कैसा बनेगा. सी वेरी लकी, इफ यू वेरी लकी देन वो वाला टाइप का क्वेश्चन बनेगा. बट दिस इज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कि पहले तुम मैट्रिक्स खुद कंस्ट्रक्ट करो, फिर उसके बाद वो कोई आपको एप्लीकेशन दे दिया. सो दिस इज फर्स्ट स्टेप टू एवरी क्वेश्चन ऑलमोस्ट. ठीक है? आगे जरूरी नहीं है वो आपको मैट्रिक्स बना के दे, वो बोलेगा मैट्रिक्स ऐसे डिफाइंड है, मैट्रिक्स बनाओ और ये मैंने क्वेश्चन दिया इसको सॉल्व करो. सो इट इज द फर्स्ट स्टेप. सो हमारे पास ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट यस दिस इज विल बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है? समझ आया? ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है. ये तो बहुत इजी है यार, हलवे की तरह इजी है, बस गप गप अंदर खा जाओ, है ना? सो वो नहीं आएगा. ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स. ठीक है? मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, एंट्रीज क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर. फिर एलिमेंट्स के स्पेसिफिक एड्रेसेस, हमने हर एलिमेंट को एड्रेस करना सीखा. सबको याद आया पक्का? वो जो हमने I J बताए हैं वो क्या है? एड्रेस. रोज फिर कॉलम. ठीक है? यहाँ अल्फाबेटिकल नहीं चलेगा, ये क्या चलेगा? नॉन अल्फाबेटिकल. R पहले फिर C, R बाद में आता है फिर C. आप लोगों को R D शर्मा याद रहेगा, नींदों में भी हॉरर देता होगा R D शर्मा, है ना? नाइटमेयर्स आते ही हैं. ठीक है? तो R D की जगह क्या याद रखेंगे आप? बस
RC, राइट. सो RC, R पहले फिर कॉलम. सो ऑर्डर में भी सेम चलता है, नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स. एड्रेस में भी सेम चलता है, रो नंबर कॉलम नंबर. ठीक है. सो किसी भी मैट्रिक्स में MN एंट्रीज होंगी या एलिमेंट्स होंगे और हर एंट्री एक स्पेसिफिक एड्रेस पे होगी. ठीक है. एक एड्रेस पे दो एंट्रीज पॉसिबल नहीं है. ऐसे समझ लो ना यार, तुम्हारे घर का एड्रेस, लेट्स से अजय के घर का एड्रेस विजय के घर का एड्रेस हो सकता है क्या? नहीं ना. सेम, आप इस सीट पे बैठे हो, बोलो मेरी ये सीट है, यहाँ पे आप आके बैठ गए, अब आपके ऊपर थोड़ी ना कोई आके बैठेगा, राइट. सो यूनिक है. ठीक है. एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक एड्रेस, राइट. देन वी सॉ हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिसेस. जनरल फॉर्मेट समझ आया मैट्रिक्स का? MN मैट्रिक्स जो मैंने बनाया था वो समझ आया? सी वो सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में कोई नहीं बोलेगा बना के बता. Nobody will say, but that will help you कि आपको कोई भी रैंडम ऑर्डर में दे देती हूँ तो आपको बेसिक मैट्रिक्स बनाना आता है. ठीक है. और वो हेल्प क्यों करता है? देखो इस फॉर्मेट में वो हेल्प कर देता है कि आपने जब उसके एड्रेसेस ढंग से लिखे हैं ना तो आप उसके एलिमेंट्स गलत कैलकुलेट नहीं करोगे, राइट. अभी यही अगर आपने इसका जनरल फॉर्मेट बनाया होता तो आई थिंक आप 3-1 निकालते ही नहीं, क्योंकि आप देखते यार 3-1 तो है ही नहीं उसमें, कैसे निकालूंगा? That ways, right? So we say कि every element is having a unique address and we have also learned about how to construct a matrix. Is this clear to all? पक्का समझ है क्या? पक्का सही? Seriously? मेरे को खुश करने के लिए नहीं बोला ना? पक्का ना? ठीक है. All right. So we'll wind up our class today here. In the next lecture, we'll be discussing about the types of matrices and the algebra. So that part again, मतलब वही चीज़ है, इसका एक्सटेंशन है. सो दिस व्हाट वी हैव स्टडीड विल बी यूजिंग दैट पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो. और अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे. ऑलराइट. ओके. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय. थैंक यू. बाय बाय.